Hello everyone, myself Dr. Rakhi, Program Officer NSS Unit 2 of Maharaja Agarsen College Jagadri. On behalf of organizing team of 3 days online yoga workshop which is being organized at national level on the occasion of International Day of Yoga welcomes you. The theme of the workshop is Yoga at Home. As we know that everyone is under acute stress. So this day becomes of paramount importance, especially during this COVID-19 period, because we are feeling a strong need of calmness, well-being, immunity booster to protect ourselves from the ill effects of this pandemic. Therefore, I think yoga is the best solution for all these things. We can unite our body, mind, soul, and health all together through yoga. Yoga doesn't mean doing only certain asanas like bending, twisting, etc. It means much more than this. We can strongly get relief from physiological problems as well as psychological stress through it. With the blessings of God and support of our Honorable Principal Sir, Dr. P.K. Vajpayee ji, we hope to raise awareness about yoga asanas and their benefits to college students at national level through this online yoga workshop. As we are doing it at our own homes, therefore, we have laid down certain rules to be followed by participants. There is no doubt that one-to-one yoga training works better than sitting at home and watching videos on YouTube and then perform it. In fact, we, the Mac family, are taking it in a more positive way, that is, learning by doing at home. But of course, yoga needs training, therefore, we are before you with this workshop and we expect from participants that they will also learn from us and do all the yoga asanas at their respective home so that the objective of this workshop can be met. These are few points but most important one. First, the participants have to engage themselves actively through video links on yoga asanas shared during the 3 days. They have to do yoga asana at home daily and then they have to capture one image or they can create video of not more than 10 MB and then submit it through the given link on WhatsApp group daily. WhatsApp group link is given here and joining this WhatsApp group is must. And on the last date, we will play a quiz on yoga asanas and it will be mandatory to attempt it. With the constant support and motivation of college principal Dr. P.K. Vajpayee ji, we the organizers Dr. Vijay Chawla, Dr. Rakhi and Lieutenant Anil thank Maharaja Agarsen College Jagadri that they have given us this platform to organize a wonderful event. And I would like to thank Mr. Abhishek Rathi, who is a NSS volunteer and student of Become final year. He will act as yoga trainer as the motto of NSS says that not me but you. Being programming officer of NSS, I personally feel proud when I see NSS volunteers coming forward for social events. And it happened this time also when Mr. Abhishek Rathi agreed to be a yoga trainer for the participants. He is a NSS volunteer and as the exams are near but devoting time for making videos on this yoga workshop,
willingly itself proves that NSS volunteer services are valuable, inspiring ones, and need recognition. Therefore, we plan to organize this event by Mr. Abhishek, who is energetic enough and superb yoga master. Once again, I welcome you all on behalf of the organizers of this workshop. While doing asanas, you must follow these important instructions like use your own mat, comfortable and breathable clothing is must, don't get stressed while doing yoga, and it will be very useful and fruitful for you people if you perform yoga asanas on an empty stomach. So just do the same for this workshop too. I think yoga benefits are much more than this which I have displayed here. It improves stamina, flexibility, strength, it improves concentration, creativity, it acts as an immunity booster, it improves the productivity of a person, it creates sense of well-being. I think yoga is something through which we connect with the nature, we connect with the environment, we do good for our health as well as we do good for the environment. We throw out positive vibration from our body through yoga asanas. So ultimately it is very beneficial for everyone. So I hope through this workshop all the benefits which yoga can provide to the body, to the mind, to soul or to the health, they will come up and benefit you on a large scale. On the very first day of yoga workshop, we are going to perform many asanas like Balasana, Virasana, Sarvangasana, Halasana, Karna, Pidasana, Matsyasana. I hope you will enjoy this session. Few may feel it very easy and few may feel it very tough. But I have only one suggestion, that you just try on day one, but you can do practice it later at your respective homes with full zeal, and it is of utmost importance that you have to capture one video or an image, and that you have to submit on through the given link on the WhatsApp group created earlier. Joining the WhatsApp group is must, and now I invite Mr. Abhishek to perform yoga asanas and train you people. Thank you. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राठी। इस योगा इवेंट के पहले दिन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बालासन यानी चाइल्ड पोज, वीरासन यानी हीरो पोज, सर्वांगासन, हलासन, कर्णा पीडासन और अंत में हम करेंगे मत्स्यासन। तो चलिए इस योगा इवेंट के प्रथम दिन को शुरू करते हैं। आज के इस योगा इवेंट में हम सबसे पहले करेंगे बालासना। बालासना के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले ये आपकी मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, आपके गर्दन का दर्द, आपके पीठ का दर्द इससे ठीक होता है। ये आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, जिसकी वजह से हाई बीपी, लो बीपी, आपका शुगर की प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इससे डायबिटीज़ से छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले हम करते हैं बालासना। बालासना करने के लिए आप वज्रासना पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाएं।
आप अपने घुटनों को थोड़ा खुला रख सकते हैं। इस पोजीशन में बैठने के बाद अपने हाथों को ऐसे करें और धीरे धीरे सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, जमीन पर अपने हाथों को रखें, अपने माथे को धरती पर रखें। ध्यान रहे आप अपने हाथों को टाइट ना रखें। आप ऐसा 30 सेकंड तक कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप वापस वज्रासन पोजीशन में आ जाएं, सांस अंदर लेते हुए और इस तरह आप आसानी से बालासन कर सकते हैं। बालासन करने के बाद चलिए हम दूसरा आसन करते हैं, वीरासन यानी हीरो पोज। वीरासन पोज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके अगर हाई बीपी और अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसमें ये लाभदायक है। ये आपके मन को संतुलित रखता है, आपके घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और आपकी पाचन शक्ति बनाए रखता है। तो चलिए करते हैं वीरासन यानी हीरो पोज। सबसे पहले वज्रासन पोज में बैठ जाइए। वीरासन पोज करने के लिए अपने जो एंकल्स हैं इस चीज को ऐसे बाहर निकालिए और दूसरी साइड से भी बाहर निकालिए और ऐसे अपने हिप्स को नीचे रखते हुए बैठ जाइए। आप इस अवस्था में 30 सेकंड बैठ जाइए। धीरे धीरे सांस लेते रहिए। ये था वीरासन पोज। वीरासन पोज के जैसा ही दूसरा है सुप्त वीरासन, इसी का पार्ट है, तो वो भी हम इसी के साथ कर लेते हैं। सुप्त वीरासन करने के लिए आप वीरासन पोजीशन में बैठे हैं। अब हम करेंगे सुप्त वीरासन। अपने हाथों को और बाजू को इस तरीके से जमीन पर टिकाएं और धीरे धीरे नीचे की ओर ऐसे लेट जाएं। अपने हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दें। तीस सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहें। तीस सेकंड बाद वापस वीरासन पोजीशन में धीरे धीरे आ जाएं। वीरासन के बाद आप वज्रासन पोजीशन में आ जाएं। तो इस तरीके से आप आसानी से वीरासन कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज का तीसरा आसन, सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाई बीपी की समस्या से
सर्वांगासन राहत दिलाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उससे राहत दिलाता है। सर्वांगासन करने के लिए आप जमीन पर ऐसे लेट जाएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को कमर की ओर ले आएं और फिर अपनी टांगों को 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को अपनी कमर पर ले जाएं और अब 160 डिग्री के एंगल में ऊपर इस अवस्था में हो जाए। अब धीरे धीरे अपने कंधों और सिर पर अपने शरीर का भार देते हुए अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए अपनी टांगों को ऊपर ले जाएं। अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा देते हैं। थोड़ी देर तक इस आसन को करने के बाद टांगों को धीरे धीरे नीचे गिरते हुए वापस लेट जाओ। सर्वांगासन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को लूज मोशन की समस्या है या जिनको कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, उन लोगों को सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। अब हम करते हैं आज का चौथा आसन, हलासन। हलासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके सिर में दर्द है तो उसको ठीक करता है हलासन। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो उससे हलासन निजात दिलाता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। आपकी कमर में, आपके गर्दन में खिंचाव पैदा करता है और आपके मन को शांत करता है। तो चलिए करते हैं हलासन। हलासन करने के लिए आप सर्वांगासन की तरह ऐसे सामान्य अवस्था में लेट जाएं। आप चाहें तो यहाँ सर्वांगासन से भी हलासन कर सकते हैं। आप सर्वांगासन की अवस्था में आकर हलासन कर सकते हैं या फिर आप शुरुआत से ही शुरू कर सकते हैं। सर्वांगासन की तरह आप धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएं और ऐसे अपनी टांगों को टेढ़ा रखते हुए पीछे की ओर ले जाना। ये हो गया अर्ध हलासन। अब आपको धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है, यानी अपने पाँवों को पीछे की ओर धीरे धीरे ले जाना है। धीरे धीरे आप पीछे की ओर ले जाएं। ऐसे अपने पाँवों को जमीन पर उंगलियों के आगे से टिकाएं और अपने हाथों को सीधा करें। इस तरह आप हलासन अवस्था में आ जाएं। लेकिन अगर आपकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप हलासन ना करें। आप इसी अवस्था में धीरे धीरे सांस लेते हुए बने रहेंगे। अगर आपके हाथ इस तरह से नहीं रह सकते तो आप अपनी कमर को सहारा देते हुए टांगों को पीछे ही रख सकते हैं। हलासन करने के बाद वापस सामान्य अवस्था में धीरे धीरे आ जाएं।
तो इस तरीके से आप हलासन कर सकते हैं। सर्वांगासन और हलासन करने के बाद अब हम करते हैं कर्णापीडासन। अब तक जितने भी आसन हमने किए हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि आप जिस क्रम में मैंने ये आसन किए हैं उसी क्रम में कर सकते हैं। उस क्रम में अगर आप इन आसनों को करेंगे जिस क्रम में मैंने किए हैं तो आप सरलता से इन आसनों को कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कर्णापीडासना यानी कि नी टू ईयर पोज। जो बेनिफिट्स सर्वांगासन और हलासन के थे वही बेनिफिट्स कर्णापीडासन यानी कि नी टू ईयर पोज के भी हैं। कर्णापीडासन करने के लिए आपको सर्वांगासन या हलासन पोजीशन में ही आना है। फिर उसी तरह से आप सर्वांगासन पोजीशन में धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और फिर आप हलासन पोजीशन में आ जाएं जैसा आपको बताया गया है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कर्णापीडासन। कर्णापीडासन करने के लिए अपने टांगों के निचले हिस्से को धीरे धीरे धरती से टकराएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को अपने कानों की ओर ले जाएं और हल्के से अपने कानों को घुटनों से दबाएं। धीरे धीरे हलासन की अवस्था में आए और फिर वापस सर्वांगासन की अवस्था में आते हुए नीचे जमीन पर सामान्य अवस्था में लेट जाए। इस तरीके से आप कर्णापीडासन कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज का आखिरी आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको थकान दूर करता है, आपकी सांसों संबंधी जितनी भी बीमारियां उनको दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, आपकी गर्दन और छाती में एक खिंचाव लाता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इस आसन के। तो चलिए अब हम करते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो गर्दन है वो मजबूत होनी चाहिए, यानी गर्दन में बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। मत्स्यासन करने के लिए आप ऐसे जमीन पर लेट जाएं। आप अपने हाथों को टाइट रखें और अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं। सर के ऊपरी हिस्से को धरती पर सटकाएं। अपने हाथों को वीडियो में दिखाए गए अनुसार ये नीचे रखें। हाथों को टाइट रखें और धीरे धीरे सांस लेते रहें। शुरुआत में आप ऐसा सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक ही करें। बाद में आप इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और फिर सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। तो इस तरीके से आप मत्स्यासन कर सकते हैं आसानी से। मत्स्यासन करने के तुरंत बाद अपनी गर्दन को आगे पीछे करते हुए आराम दें, क्योंकि
आसन को करने से आपकी गर्दन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी देर अपनी गर्दन को आगे पीछे इधर उधर घुमाते हुए आराम दें। आई होप अब आप ये आसन आसानी से कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी इस योगा इवेंट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।